Nikhat Zareen, India's world boxing champion, has captured the imagination of an entire nation, and we'll be talking to her and her father in moments from now. But all of you have been watching her extraordinary journey. This is a journey that started from very, very modest beginnings. Her father was also an athlete and gave his daughter all the freedom she needed, but she had to contest many, many battles along the way before she could savor this moment. To talk about her extraordinary journey is not just a Nikhat on the program today, but also her father, Mohammad Jameel, to talk about not just his pride as a parent, but the obstacles and the challenges that both of them had to face on this, as I said, very special journey. तो सबसे पहले तो निखत आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और जमील साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक. पूरा देश इतना प्राउड है, and निखत, as I said, is now a role model for millions of young women. निखत, आपसे शुरू करती हूँ. मैं पढ़ रही थी कि आपने कहीं पे बोला कि एक ज़माना वो भी था कि आपकी जो ज़्यादा कम्युनिटी थी, रिश्तेदार थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे. वो कहते थे ये मर्दों का खेल है. जब आप शॉर्ट्स पहनते थे तो कहते थे क्यों शॉर्ट्स पहनते हैं. और आपकी अम्मी भी उस समय थोड़ा वरी करती थी कि भाई मेरी लड़की से कोई शादी करेगा या नहीं. और आपने उनको जो उस समय बोला, ज़रा वो शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी लड़कियों को वो जो आंसर है वो सुनना चाहिए. निखत. जी हाँ, जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड बॉक्सिंग, तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि कि बॉक्सिंग मर्दों का गेम है, व्हाई डू यू हैव टू टेक अप बॉक्सिंग, कोई और गेम नहीं मिला, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब. बट स्टिल लाइक जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, आई स्टार्टेड लाइकिंग बॉक्सिंग, एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग कि व्हाई डू यू हैव टू टेक अप ओनली बॉक्सिंग, तो मैंने किसी की सुनी नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज हैड ओनली वन ड्रीम, टू अचीव गोल्ड मेडल, टू विन गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री, एंड दैट वाज माय ड्रीम. एंड तो मेरा सारा फोकस उसी पे था, तो आई डिडंट लिसन टू देम. तो सिंस एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो you should not focus on people, rather than you should be focusing on yourself, and I was focusing on myself, and I was working hard to achieve my dream. So Nikhat, आपने कहा that you were focusing on yourself and you have made, of course, your country proud. But it wasn't always easy. You were a young girl at that time. आपको बहुत ही multiple battles fight करने पड़े. Even just the right to wear shorts, for example, as a sportswoman, उसमें भी आपको थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ी. तो talk about that difficulty, given the background you came from. आप जिस तरह के background से आए थे, और उसमें आपके अब्बा यहाँ पे हैं, उनका क्या रोल रहा in giving you that freedom and helping you fight for that freedom? Yes, as I said, when I started boxing, many people used to come and comment and criticize me that why are you wearing shorts and all that. But my father always told me कि बेटा कि आप अपने boxing पे focus करो. जिस दिन आप देश के लिए मेडल जीतोगे तो यही लोग आपके पास आके फोटो खिंचवाएंगे. तो या that is the reason. Since then I was only focused on boxing. I never listened to anyone. I only believed in hard work, and I did, and finally I won medal for my country, so it feels good. Before we speak to Jameel Saab, as a daughter today, Nikhat, what would you want to say to your Abba? मैं जो भी हूँ just because of my parents, and I'm really grateful and blessed to have such parents in my life, and I wish कि हर लड़की को ऐसे parents मिले. But I like whatever I am today, it's because of my parents. So and ज़्यादातर तो मेरे पापा ही मेरे साथ ट्रैवल करते हैं बॉक्सिंग में. मेरा कोई भी कंपटीशन होता है या कोई भी कैंप के ट्रायल्स होते हैं, तो ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. ही ऑलवेज कम्स एंड विजिट माय कैंप, मिलते रहते हैं. तो एक सपोर्ट रहता है उनका हमेशा कि लोग कि एक हमेशा मुझे वो
फील आता है कि हाँ, माई फादर इज ऑलवेज देयर फॉर मी. तो या आई एम लाइक ब्लेस्ड टू हैव सच फादर. फैंटास्टिक. जमील साहब, अब आपको इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं. यू हैव बीन एन एथलीट ऑल्सो, लेकिन आपके लिए भी आसान नहीं रहा होगा. आपको मल्टीपल बैटल्स, मल्टीपल चैलेंजेस रहे होंगे. कम्युनिटी के चैलेंजेस, रिसोर्सेज के चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस. तो अपनी जर्नी और आपने कैसे फैसला किया टू गिव योर डॉटर, क्योंकि ना हम अपनी बच्चियों को आज़ादी देते नहीं हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करके जंजीरों में बांध कर रखते हैं अक्सर. तो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आपने ये कैसे फैसला किया ये आजादी देने की निखत को, और क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट रहे अलोंग द वे, जमील साहब? जी बिल्कुल. सारे भारतवासियों को मुझे कहना चाहता हूं कि ये निखत ने जो गोल्ड मेडल दिया है उनके तरफ से ये मेडल उनको डेडिकेट करना चाहता हूं. सारा भारतवासियों को और सारे लड़कियों को, भारत की जनता के, उनको भी डेडिकेट करना चाहता हूं. और आगे आइए, इसी तरह अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कीजिए और नाम बढ़ाइए अपने देश का, और गौरव सम्मान मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा. अब रहा जहां तक सवाल ये इनके जर्नी के लिए और इनके कुछ करियर बनाने के लिए, तो मैंने एक प्लान किया था कि मेरे बच्चों को अच्छा सा पढ़ाए और आगे बढ़ाए, सोसाइटी में कुछ ठहरा करे, अपने आप डिपेंडेबल बनाए. तो उसी तरह दोनों लड़कियों का एक मेडिकल लाइन में लेके जाने का एक रास्ता बना. तो आज वो सक्सेस भी हो गए. और इत्तेफाक से निखत को, एज ए मैं स्पोर्ट्समैन था, तो घर के पास खेला करते थे वो लोग. तो समर का सीजन था, वेकेशन में आया हुआ था मैं, तो उनको ग्राउंड पे लेके गया एज ए स्पोर्ट्समैन. चलो वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ गेम के इस पे उनका माइंड चेंज होगा, तो शायद हो सकता मैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ कन्वर्ट करूँ. तो उसी का एक बहाना था माइंड में कि उनको ग्राउंड पे लेके गया और वहां पे एथलेटिक्स का ट्रेनिंग मैं दिया 3-4 दिन देख के. उसके बाद में 3 महीना 4 महीना दिया. तो सक्सेसफुली उन्होंने कहा, अर्बन स्कूल गेम से उन्होंने गोल्ड मेडल लिया और यहाँ तक स्टेट के लिए रिप्रेजेंट किया और 4th प्लेस रही. तो वहां पे ही एक टर्निंग पॉइंट वो भी हो सकता है कि जब वहां पे बॉक्सिंग भी खेला जा रहा था, ग्राउंड में 4-5 गेम्स खेला करते थे, तो ट्रेनिंग हुआ करती थी वहां पे. फिर इनका एक माइंड ये हुआ कि भाई मेरे को बॉक्सिंग यहाँ खेला जा रहा है, क्यों नहीं इसमें लड़कियां हैं, तो होना चाहिए था. तो वो एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे को ये किया कि भाई यहाँ पे स्कूल बॉक्सिंग खेला जा रहा है, उसमें लड़कियां क्यों नहीं है. तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाई लड़कियों के पास गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए और एक ताकत चाहिए. दूसरी बात की, जो उस लड़की को मार लगा तो शादी कौन करेगा. तो सारे ऐसे क्वेश्चन है. बाकी का तो ड्रेस कोड है, वो तो बात की बात है. तो वो इंटरेस्ट बताया इसमें. तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद में फिर ऐसा ऐसा माइंड में मैंने भी उसको सेटिंग किया कि फिर चलो हम इनको इसमें ही प्रमोट करते हैं. तो वहां से बॉक्सिंग के लिए उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया. और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अपनी जो एक तरह से प्रेशर कुछ एक्सटेंडेड फैमिली या अपने समाज की तरफ से आया होगा कि भाई लड़की क्यों बॉक्सर बन रही है, लड़की क्यों शॉर्ट्स पहन रही है, आप ये मर्दों वाले खेल क्यों खिलवा रहे हैं, वो आपने कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल. जब वहां पे बॉक्सिंग स्टार्ट किए तो 4-6 महीने तक तो कुछ लोगों में देखते रहे आंखों से कि भाई कोई यानी कि हर कम्युनिटी के जो लोग वहां पे वॉकिंग आते या कुछ खेलने आते, बस वही देखते कि भाई ये चीज क्या है, इसका रिजल्ट किसी को मालूम नहीं है ना आगे के बारे में. तभी तो शुरुआत थी जब. लेकिन जहाँ पे अब 1 साल के बाद में जब पक्का ये लोग एक अच्छे को बॉक्सर बन गए, तब नेशनल में, जूनियर नेशनल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट के लिए, गोल्ड मेडल और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिया. तब सारे सुर्खियों में, पेपरों में आने लगे. तो लोगों का रिकॉग्नाइज हुआ कि भाई ये कौन है लड़की, कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ खेल रही है. तो कलेक्टर ग्राउंड में खेल रही है. तो उसका एक, जहाँ वहां से इनका एक आई सेटिंग बना सारे जो भी लोग का है, तो आके देखने लगे. तो वहां से ये कमेंट्स चालू हो गए कि भाई ये लड़की ऐसा खेल रही है, चलो नाम भी आया है, लेकिन जो सो ये शॉर्ट्स खेल रही है, फलाना है. तो वीकेंड का स्पायरिंग होता है ना, तभी ज्यादा करके ये शॉर्ट्स, ये हाफ यूज यानी कि जो उसका फायरिंग का ड्रेस होता है वो यूज होता है. तो बोलते हैं कि इसको मार लगेगा, क्यों इसको बॉक्सिंग में डाले. कई लोग बोले मेरे को, ग्राउंड में बोले, बाहर भी बोले. तो मैंने उनको इग्नोर किया. मैं अपना जो काम करना है करना है, क्योंकि एक बार जब फील्ड में ला लिए तो किसी की बात सुनना नहीं है. और किसी का सुन के भी हमको करना क्या है, किसी के राय मशवरे पे, तो किसी के एडवाइस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते ना. तो हम अपने एक मकसद में आगे, फिर आगे हमारे देश के लिए रिप्रेजेंट करना है. अल्टीमेट गोल हमने फाइनल किया था मैंने, और वो अल्टीमेट गोल में आज सक्सेस भी हो गई. आपके लिए सबसे बड़ी कठिनाई, आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही कि भी बाकी लोगों की अटेंशन ही क्यों दें कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन आपके लिए पर्सनली एज अ पेरेंट सबसे कठिन चैलेंज क्या रहा जमील साहब? जी कठिन चैलेंज यही है कि अब इनको यहाँ से जब रिकॉग्नाइज हो गया डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर इनको आगे के लिए करना क्या है.
कि आगे फिर इनको जो सो इंडिया से रिप्रेजेंट कराना है। फिर जब वहां पे उनका नेशनल में सिलेक्शन हुआ, नेशनल कैंप के लिए विशाखापट्टनम, जिनके अंडर में अभी वेंकटेश्वर राव कोच थे, तो आज उनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। तो वहाँ कैंप में इनका सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ पे इंडियन 6 महीने के बाद में इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिला जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। फिर वहां से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। सेकंड टर्निंग पॉइंट उनका लाइफ में वो है। फिर वहां से मैंने पूरा ही कॉन्सेंट्रेट यही किया कि भाई इनको आप कंप्लीटली अब ये ओलंपिक टारगेट बनाना है। चार लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे पॉजिटिव माइंड के लोग, बोले कि अब ये लड़की जा सकती है, इनको फौरी जॉब ले लो, फिर उसके बाद में अल्टीमेट ओलंपिक टारगेट बनाओ तो ये सक्सेस है, ये बनने वाली है। कुछ लोग आज ऐसे भी कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जहाँ पे फिटनेस के लिए आया करते थे, वो लोग देख के बोलते थे कि देखो सर, ये आपकी लड़की जो एक दिन अल्टीमेटली इसमें कैपेबिलिटी है, हर कुछ है, और ये ओलंपिक की मेडलिस्ट बनेगी 100%। बस आप इनको पीछे से लेके चलना है, दुनिया को बाजू में रखो, आप कंप्लीटली वन साइड फोकस करके इनको लेके जाओ, ऑटोमेटिक ओलंपिक गोल्ड मेडल ही। ये हमारा वादा, दावा भी है और वादा भी है। उन्होंने प्रॉमिस भी किया। कई लोग सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं है, कई लोग है, लेकिन जिसकी माइंड जो सो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, सोचने का अलग है। तो आज भी लोग ऐसे है, आज भी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कुछ लोग का ऐसा है कि भाई आगे कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरे क्यों, अभी तो अभी आगे बढ़ गई, इसका नाम हो गया। कुछ है, दुनिया का वसूल है ये तो, अच्छा बुरा सोचने का उनके पास है। So Nikhat, we're hearing from your father, his incredible attitude. जैसे कि उन्होंने कहा कुछ that he was not bothered at all कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं. And I think incredible sort of role played by your parents. But I want to ask you कि as you kept progressing, you also had to take on the dominance of Mary Kom, and the fact is that you actually took on someone very mighty in your space. तो उसके बारे में जरा बात करिए कि वो शैडो से, मेरी कॉम की शैडो से निकलना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, और आज आप अपने आप को कितना विंडिकेटेड महसूस करती हैं आफ्टर योर विन। और हैज शी कॉल्ड यू, उनसे कोई बात हुई, उनकी तरफ से कोई कंग्रेचुलेशंस आई, उसके बारे में थोड़ा बात करिए निखत। जी, या आई टर्न्ड सीनियर इन 2015। तो जब मैं सीनियर टर्न हुई थी, दे वर ऑलरेडी experienced and senior players in that weight category. तो me being a very young boxer, तो I can't expect कि मैं जाते ही नंबर 1 पे मैं स्टैंड करूँ मैं। तो they were already experienced boxers like मैरी कॉम, पिंकी झांगरा। तो मुझे टाइम लगा अपने उस वेट कैटेगरी, फ्लाई वेट कैटेगरी में जगह बनाने के लिए। एंड एट द एंड अभी लास्ट में अब जाके मुझे मौका मिला है, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन गोल्ड मेडल फॉर माय कंट्री, तो इट फील्स गुड, या। But there was a time when Mary Kom said, "Who is Nikhat Zareen?" So today, I'm sure you felt bad then, and today, given your win, how do you feel? Do you still feel angry with Mary Kom? No, not at all. I was not even angry at that time. अभी भी नहीं हूँ मैं. It's just that कि I have asked for the fair trial, because if I get the trial, if I get the chance, तो हम भी मुझे भी एक्सपीरियंस मिलता इतने बड़े एक्सपीरियंस बॉक्सर्स के साथ खेल के, बिकॉज मेरे पास भी इतना सीनियर लेवल का कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो आई वांटेड टू हैव अ बाउट विथ हर, एंड वहाँ पे मैं फिर अपने आप को मैं करेक्ट कर सकती हूँ कि वेयर आई एम लैकिंग, मैं किस चीज़ पे मुझे काम करना है। तो उस हिसाब से मैंने अपने आप पे काम किया उसके बाद में, आफ्टर द टोक्यो ट्रायल्स। एंड आई नो कि वेयर आई एम लैकिंग एंड वेयर आई हैव टू वर्क ऑन। तो आई डिड, एंड टुडे सक्सेसफुली आई managed to win a gold medal at World Championship. So yeah, and she is very senior to me. I have always looked up to her. She has been a huge inspiration for all our boxers. Okay, now tell me this, you have been asked, जैसे आपके पापा भी बता रहे थे, आपने भी बताया कि पहले लोग कहते थे कि आप ये मर्दों का गेम खेल रहे हैं, आप शॉर्ट्स क्यों पहनते हैं। You have spoken up on the right to choose for women, कि भाई आपको शॉर्ट्स पहननी है तो आपने शॉर्ट्स पहनी, किसी और को हिजाब पहनना है तो वो हिजाब पहन सकते हैं। तो ये जो आपने प्रो चॉइस स्टेटमेंट दी है ऑन द हिजाब डिबेट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, मुझे बचपन से ही खेल कूद में बहुत शौक था। तो व्हेन आई स्टार्टेड बॉक्सिंग, तो कई लोग ने बोला था कि शॉर्ट्स क्यों पहन रहे हो ये सब, बट
मुझे बचपन से ही शौक था, इसीलिए मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। बट एज आई सेड कि मेरा जो सपना है इंडिया के लिए मेडल जीतना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, उसको पूरे करने के लिए मुझे लोग क्या कह रहे हैं उसको मुझे इग्नोर करना था। और रही बात स्पोर्ट्स में कोई रिलीजन नहीं होता है, बिकॉज जब हम स्पोर्ट करते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना है और अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। तो दैट वाज माय ओनली एम कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है एंड मेडल जीतना है। तो फॉर मी देयर इज नो रिलीजन इन स्पोर्ट। आई डोंट सी एनी I don't see any Hindu Muslim in sports. For me, everyone are equal. एंड इवन मेरे हिंदू बेस्ट फ्रेंड्स है, तो मेरे रूममेट्स ही हिंदू है। तो मेरे लिए बहुत खुशी होती है। एज ए इंडियन वी ऑलवेज वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी ऑल आर वन। तो आई थिंक वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग इन अस. No, absolutely. And it brilliantly said that there's no Hindu Muslim in sports. It's about being Indian and representing your country on that stage. But, when you speak about young women like you, maybe younger than you, you have expressed an opinion that girls should be allowed to choose. Jisko shorts pehna hai wo pehne, jisko headscarf pehna hai wo pehne. You have grown up with both kinds of women around you. So if you would like to, elaborate on that feeling that you have, that girls should be allowed to make a free choice. Yeah, of course, it's their own personal choice. Like in my family, both the sisters wear hijab, but I don't wear hijab, and my father doesn't have any problem with that. So it's it's their own choice. So my parent never forced me to wear hijab. My family never forced me to wear hijab, and that's my if my elder sisters are wearing hijab, so that's their own choice. So they are following it. They like to be in hijab, so it's their own choice. And I like to be like this, so that's why I don't have any problem me wearing such clothes. And I think everyone should follow what they want, and if they want to wear hijab, they can wear hijab, and if someone doesn't want to follow it, so it's their own choice. So I can't comment on anyone's choice. Everyone have their own choice. Absolutely. Now, before I go back to your father, please share with us the story of when your mother was worried, maybe half jokingly, that nobody would marry her boxer daughter, and you told her that they will be dulhun ki dulhon ki line lag jayegi, aap mujhe mera sapna to pura karne dijiye. So tell us about that story. Yeah, when as I said, I was the only girl in that stadium to do boxing, and that was my first sparring session. And my partner started hitting me with very powerful shots, and those punches landed on my face, and my nose started bleeding, my eye became black, and I went home like that. And when mother saw me like that, she started crying, and she said कि बेटा मैंने बॉक्सिंग में तुझे इसीलिए नहीं डाला कि तेरा फेस खराब हो जाए। अगर तेरा फेस खराब हो जाएगा, कुछ तुझे हो जाएगा, तो तेरे से शादी कौन करेगा? पहले ही मेरे 4 बेटियां हैं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो आई सेड अरे अम्मी आप टेंशन नको लो, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। तो now since then she is used to it, and she if I get hit also now, then she casually she says कि अरे कोई बात नहीं, आइस लगा लो ठीक हो जाता। So now she's very chilled out. Lovely. Javed Saab, what is your dream now? 2 of your daughters are doctors. One daughter is a world champion. As a father, what more dreams do you have for Nikhat and her sisters? आपके क्या सपने बाकी हैं जो अभी पूरे नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल अभी बाकी है। अभी तो 50% अभी रिजल्ट हुआ है। अभी बाकी की फिल्म की स्टोरी रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी दोनों लड़कियां तो दोनों स्पेशलिस्ट है फिजियोस के, उन्होंने अपने अपने घर है, अपने अपने ससुराल में है, अपने अपने फैमिली में सेट हो चुके हैं। अभी निकत है, उनका भी तो अभी ओलंपिक का एक ड्रीम है उनका, और मेरा भी ड्रीम है। और ओलंपिक कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 साल है, उसकी हमको तैयारी करना है अभी नेक्स्ट ईयर से। और अल्टीमेटली वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी ऑटोमेटिक आपका ड्रीम वेरी क्लोज टू द ओलंपिक मेडल आल्सो,
क्योंकि ओलंपिक्स से ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप द ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट है और कंपटीशन ज्यादा रहता है। तो अल्टीमेटली हम तो ओलंपिक्स का 24 ओलंपिक्स में तो बेस्ट प्लेयर अवार्ड लेने के लिए हम इंटेंसिव ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। निखत इज ए चैंपियन, शी प्लेड लाइक ए चैंपियन एंड शी इज अ चैंपियन, नो डाउट। भारत के लिए बहुत बड़ा एक कोहिनूर हीरा है और शी कैन डू इट। और आने वाले इसमें गोल्ड मेडल के साथ साथ बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेंगे ओलंपिक्स में, ये मेरा चैलेंज है एज ए इंटेंसिव ट्रेनिंग करा के। और दूसरी बात रही सवाल, हमारे उनके चारों सिस्टर्स है, निखत को इंक्लूडिंग 4 बेटियां हैं मेरे, दोनों ये हो गए और तीसरी लड़की ये है और चौथी लड़की एक है अफनान जरीन जो इनसे छोटी है। उन्होंने भी अभी बैडमिंटन में खेल रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस है। देखते हैं उनका फ्यूचर कहाँ है, इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं सुचित्रा एकेडमी में, आगे देखते हैं उनका कैरियर कहाँ तक जाता है। लेकिन हम प्लान ये है कि बहुत जल्द मैं एक एकेडमी भी ये करूंगा जिसमें बॉक्सिंग के साथ साथ बैडमिंटन भी होगा, जहां पे अगर वो चैंपियन नहीं बनती भी है तो उसको एक एज ए कोच बना के आने वाले फ्यूचर में दूसरे लड़कियों के लिए बैडमिंटन के प्लेयर्स को चैंपियन देश के लिए तैयार करने के लिए मैं उनको रेडी करूंगा। Brilliant, brilliant, Jamil Saab. Last question to you, Nikhat. You got many accolades. All the people of the country have been congratulating you. लेकिन मुझे लगता है कि खास आपके लिए सलमान खान की मुबारकबाद रही. I was seeing on your Twitter page. What did that moment, Nikhat, mean to you when Salman Khan actually wrote about you? Casually giving interview and मुझे एक क्वेश्चन मिला एंड पता नहीं मैंने एकदम से बोल दिया कि मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कमेंट ट्वीट किया है, अगर उस पे अगर सलमान खान का भी ट्वीट आ जाता है मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने का, तो उस पे चेरी ऑन द केक हो जाएगा करके मैंने ऐसे कैजुअली एक इंटरव्यू में कहा एंड वो सच हो गया था। एंड व्हेन आई सॉ द ट्वीट आई वाज जंपिंग, आई वाज लाफिंग एंड आई वाज क्राइंग आल्सो, माय हैंड्स वर शिवरिंग आफ्टर वाचिंग दैट ट्वीट। मैं इतनी खुश हुई, फिर मैंने उनको रिप्लाई भी किया एंड थोड़ी देर बाद फिर से उनका रिप्लाई आया एंड उसमें लिखा था कि कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, लॉट्स ऑफ लव। एंड व्हेन आई सॉ दैट लॉट्स ऑफ लव वाला sentence and I like, hi, this is so sweet. So it's like it's my dream to meet him one day. तो डेफिनेटली इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं जरूर उनसे मिलूंगी और मैं मिलके उनको सबसे पहले बहुत बड़ा हग दूंगी क्योंकि आई एम हिज ह्यूज फैन। तो मेरा ड्रीम है उनसे मिलना। तो ये बहुत खुशी हुई है मुझे जब उनका ट्वीट मैंने देखा था। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी सलमान विल बी कॉलिंग यू होम फॉर अ कप ऑफ टी। जमील साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे इस पे? जी मैडम, तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने के मैं निखत को मुबारकबाद देता हूं। और ये मेडल के पीछे जो हमारा जो सपोर्ट रहा है, जो एक टाइम में हमको बहुत जरूरत थी इनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देने के लिए, उस टाइम में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने 50 लाख का फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कैश के तौर पर दे के आज हमारे को निजामाबाद से हैदराबाद शिफ्ट करके उनकी इंटेंसिव ट्रेनिंग चिरंजीवी साहब ने दिए हैं। उनके पास आके रहने के लिए 9 साल का जो जर्नी हुआ, तो आज एक चैंपियन तैयार होने के लिए केसीआर साहब को उनका मैं थैंक्स अदा करता हूं। उनके साथ साथ उनकी बेटी जो हमारे एमपी थे कविता मैडम, उनका भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं। उन्होंने भी मेन रोल किया। और अब 1 साल के नीचे थोड़ा सा हमको थोड़ा कमी महसूस होने लगी, तब हमारे बैंक ऑफ इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, जॉब दिया है उनको ऑफिसर पोस्ट के लिए और आगे भी हमारा सपोर्ट देने के तैयार है। अभी जैसे ही निखत 27 को आएंगे वहां से हम चीफ मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट है, वहां मिलेंगे और बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करेंगे सीएम साहब का। और आगे के लिए भी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए हम उनसे जो रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल हमारा सपोर्ट करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब, सारे लोग हम मुझे बधाई दिए। कल हमारे हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय साहब ने भी, किशन रेड्डी साहब ने, रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के, इवन कई हाई प्रोफाइल्स उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी जो मैं लड़कियों से कहता हूँ कि आइए बॉक्सिंग चुनिए। और कई पेरेंट्स में से आज कांटेक्ट में है कि हमारी भी लड़कियों को हम बॉक्सिंग में डालना चाहते हैं, सर अब क्या करना है। तो मतलब बहुत जल्द हम एकेडमी चालू करने वाले हैं। वो एकेडमी में इंशाल्लाह हम सपोर्ट करके अच्छे से अच्छे चैंपियंस तैयार करेंगे। थैंक यू। Thank you, Jamil Saab, and thank you, Nikhat. May every dream of yours come true. Starting with a chai with Salman Khan, all the way to the Olympics. May all your dreams come true. Bless you, Jamil Saab and Nikhat Zareen, a champion today on Mojo Story. Pleasure talking to you. Take care. Goodbye.
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.